Hello everyone, let's start with our next topic of chapter life processes, that is excretion. This will be the last topic of our first chapter. So let's start it. The topic's name is excretion. So what is basically excretion? Excretion is a removal of unwanted substances from the body. So what is it? It is basically removal of unwanted substances. As you know कि हम जो खाते हैं जरूरी नहीं कि हर एक पार्ट, हर एक कॉम्पोनेंट ऑफ दैट थिंग हम जो भी हम बॉडी में लेके जाते हैं, वेदर इट इज़ गैस, वेदर इट इज़ फूड, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, सो वो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के लिए हर चीज़ ही ज़रूरी है और बॉडी को चाहिए. देर मस्ट बी समथिंग, और बॉडी में कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हो सकती है जिसमें कुछ बाय प्रोडक्ट बन रहा है जो बॉडी को नहीं चाहिए. सो इट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड आउट, अदरवाइज वो बॉडी में क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है. सो उसे रिमूव करने के लिए देर इज़ अ सिस्टम इन आवर बॉडी दैट इज़ excretion. So it is a process which involves removal of unwanted substances that are quite toxic to the body, अगर वो बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं तो. ठीक है. So to remove the things from the body that are unwanted, like urea, uric acid, like certain drugs, like carbon dioxide, these are the things that are needed to be eliminated, that are required to be eliminated from the body. अदरवाइज बॉडी में इनके वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है और बॉडी को हार्म हो जाता है. ठीक है. सो इस चीज़ के लिए अगर तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एज इन नो अमीबा हमने करा था. अमीबा में तो उसके सेल सरफेस से ही, थ्रू इट्स सेल सरफेस, जो है वेस्ट रिमूव हो जाती है. एज वी डन द 5 steps that are involved in nutrition, the egestion steps remove the removal of unwanted or waste products from amoeba's body. So वो सिंगल सेल का मॉलिक्यूल है, so it is quite easier to remove the waste from a single cell rather than a complex body like human's body, like any organism that is made up of organ systems, that is made up of more than that tissue level organization. So उन केसेस में there must be something system होना चाहिए. So in case of multicellular organisms like humans, there is a system that works, that is excretory system. This excretory system consists of various parts. We will discuss each and every part one by one. You have heard the term kidneys, है ना? From the lower classes you must have heard it. First we will learn to draw the diagram, that how we can understand that how does it look like. So let's start that. For that, first we need to do is to make a bean shaped kidney here and this side also. Then we are going to draw a vein this way, and there is an artery also. The way I am drawing it, you are also going to draw it the same way. So there is a vein, renal vein. This is showing renal vein, and this is the renal artery. So these are the kidneys. If this is the right kidney, this is the left kidney. ठीक है. Now you have, there are long tubes, long narrow tubes that go down. Need to rub it a little. ठीक है. Going to draw it like this. This will come down. Okay, so these are the kidneys, these are the arteries and vein which are pouring the blood and taking and
bringing the blood to the kidney so that it can purify it. Then there are two narrow tubes, ureters, and there is a sac-like structure, that is urinary bladder. Then there is last the opening of urinary bladder into a tube, that is urethra. ठीक है. So what are the parts of our excretory system? There are two bean shaped kidneys. From kidneys there are two long narrow tuberises, that are ureters. Ureters open up into a sac like structure, that is urinary bladder. This sac like structure is a bladder. Then this bladder opens out through a tube, urethra, through which human can pee out. So that is urethra. So this is the excretory system from which we can eliminate our body's waste. ठीक है. So there are two vessels, that is renal vein and renal artery. So that brings the blood and keeps the blood away from the kidneys so that कि वो प्योरीफाई हो सके. अल्टीमेटली ब्लड में ही वेस्ट है जो हमें रिमूव करनी है और उस वेस्ट को यहाँ तक पहुँचाना है, सो दैट यहाँ पे कलेक्ट हो जाए और इट कैन बी एलिमिनेटेड आउट. ठीक है. सो जैसे यहाँ से ब्लड प्योरीफाई होकर वेस्ट यहाँ से यहाँ आती है, मतलब फ्रॉम किडनी इट विल गो डाउन टू द यूरेटर, इट स्टार्ट्स गेटिंग फिलिंग अप. ठीक है. सो जब ये भरना शुरू हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, जब ये पूरा भर जाएगा विद द यूरिन, तो इसका प्रेशर, जो यूरिन है उसका प्रेशर जाएगा ऑन द वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. तो उसकी वजह से अ पर्सन फील्स टू यूरिनेट इट आउट, सो देन इट कैन बी यूरिनेटेड आउट. So this is how urination takes place in humans. So this is all about the excretory system of humans. So this is human excretory system. ठीक है. Now we will move to the next thing, that is how urine is produced in human body. Urine बनता है कैसे body में, so that it can be eliminated out. We will discuss that. Our next topic that we are going to start is the mechanism of urine formation. So the next topic is mechanism of urine formation. So basically what is the process involved in urine formation? We will do that thing कि कैसे यूरिन बनता है बॉडी में. So we will do that step by step to make you understand it a little better way, in a little better way. So how can we understand this? As you know कि जो किडनी है, दिस इज़ द मेन पार्ट जहाँ से वेस्ट की रिमूवल होती है. ये तो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हैं. सो देर मस्ट बी समथिंग इन किडनी में ऐसा कुछ होगा कि जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो ईजिली रिमूव होती जा रही है. नॉट दैट ईजिली, देयर इज़ अ ह्यूज प्रोसेस इन्वॉल्व इन द यूरिन फॉर्मेशन. सो किडनी का, जैसे हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जिससे पूरी बॉडी बनी होती है, सो दैट उसे हम बोल देते हैं सेल, वैसे ही किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. द स्ट्रक्चरल and functional unit of kidney is nephron. ठीक है. सो हमारी जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दैट इज नेफ्रॉन. दिस हैज़ बीन आस्क्ड टू यू नंबर ऑफ टाइम्स in your question paper, that which is the structural and functional unit of kidney. Many people or many students get confused between nephron and neuron. They usually take the correct answer as neuron, but neuron is the structural and functional unit of our nervous system, not kidneys or not excretory system. excretory system का और kidney का structural functional unit कौन सा है? nephron. ठीक है. it is NEPHRON. so nephron is the basic structural and functional unit. सो हाउ डज़ इट वर्क? पहले हम थोड़ा बहुत नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. स्टूडेंट्स टेक इट क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. सो हाउ कैन यू ड्रॉ इट इन अ लिटिल सिंपल वे? यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस. ठीक है. ऐसे कप बना लेना है, देन मेक इट लिटिल वेवी दिस वे, देन इसको यू शेप देना है, then again a coiled tube,
देन वी गेट एक्सटेंडेड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको ऐसे क्लोज करना है लिटिल बिट ऑफ। आई एम यूजिंग पेंसिल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्ट्स। इसमें ऐसा कुछ बना दो आप, ठीक है, टू शो दैट देर इज समथिंग इनसाइड दिस कप। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। सो क्या क्या पार्ट्स हैं अब नेफ्रॉन के? दिस आउटर कप लाइक स्ट्रक्चर is known as Bowman's capsule. Bowman's capsule, the name is on the basis of scientist's name. The inner part of capillaries or tubules or the vessels, blood vessels का जो network है, the inner part that I have drawn using the pencil is the glomerulus. ठीक है, सो यहाँ से मतलब ये ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा और ये Bowman's capsule, इसमें क्या काम है वो आगे करते हैं। Then this wavy part is PCT, that is known as proximal convoluted tubule. Tubule means the smaller than a tube. The next part, this U-shaped part is loop of Henle, according to the scientist who discovered it. And this is DCT. What is DCT? I'll label it down. Distal convoluted tubule. ठीक है, and the last part is the collecting duct. ठीक है, so these are the parts basically that are involved that you can easily observe. The first cup shaped part is known as Bowman's capsule. Inside that you can easily see a network of capillaries that is known as your Bowman's glomerulus. Then you have the wavy tube, PCT, loop of Henle, DCT, and then you have the collecting duct. So this is the basic structure of a nephron. ठीक है, इसे ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, now blood is coming from this part and it is getting filtered out. यहाँ पे filter out होने के बाद यहाँ से वापस भी जा रहा है blood। ठीक है, सो यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है। द आर्टरी और यू कैन से द नैरो पार्ट ऑफ आर्टरी और द स्मॉलर देन आर्टरी, देयर इज अ आर्टरियोल जो ब्लड को लेके आ रहा है इनटू दिस नेफ्रॉन। इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, और जो ये थोड़ा सा उससे ब्रॉडर है, मतलब ये थोड़ा नैरो होता है, ये थोड़ा ब्रॉड होता है। दिस इज ईफरेंट। ई फॉर एग्जिट से याद रखना कि जो ब्लड को वापस लेके जा रहा है। सो ईफरेंट आर्टरियोल इसे बोलते हैं। ठीक है, एफरेंट दैट इज टेकिंग द ब्लड इन, ईफरेंट जो ब्लड को लेके जा रहा है। सो एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे ब्लड आया और यहाँ से फिल्टर होने के बाद ब्लड यहाँ से वापस चला गया। देन जो वेस्ट है यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी, ये जाएगी, इधर से जाते जाते कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जब यूनाइट करती हैं एक साथ, वो कहाँ ओपन होएंगी? इनटू द यूरेटर। यूरेटर से आपको पता है कहाँ जाना है? टू द यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर से कहाँ जाना है? आउट थ्रू यूरेथ्रा। थ्रू यूरेथ्रा इट विल गो आउट। ठीक है, ऐसे जाता है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज कि ये कैसे होता है। सो देर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व कि जो यूरिन फॉर्मेशन है उसके 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो सेकेंड स्टेप है दैट इज नोन एज द रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप दैट इज इन्वॉल्व इज सिक्रीशन। ठीक है, as you can see the words already depicting what is going to happen in the particular stage. So filtration में filter हो गया कुछ, मतलब कुछ क्या मतलब blood ही filter होगा basically. Reabsorption में मतलब absorb होना है कुछ, absorption मतलब कुछ absorb होना है, वापस से absorb होना है। अब ये वापस से क्या absorb होगा, we will do that. Secretions में मतलब कुछ secrete करना है, कुछ add on करना है। So this is what we are going to do. ठीक है, सो होता क्या है, मैं आपको अगर पहले बेसिक समझा दूँ कि फिल्ट्रेशन में होना क्या है। कि ब्लड यहाँ से, पहले बेसिक देख लो,
ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ सारी जगह पर ब्लड ही ब्लड है। सो फ्रॉम दीज कैपिलरीज जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा। ब्लड में जितनी भी मतलब मान लो ब्लड में बहुत कुछ है इंक्लूडिंग द वेस्ट। जो वेस्ट हैं बेसिक सी चीज़ें जो भी ब्लड में हैं, जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोर साइज, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो भी चीज़ें ब्लड में है वो फिल्टर होके इस एरिया में आ जाती है। मतलब हियर यू कैन इफ़ यू वांट टू सी वेयर इट विल कम हियर, जो ब्लड फिल्टर होके अपना मटेरियल कहाँ ऐड ऑन कर देगा इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, मतलब इस स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ कैपिलरीज में से ब्लड यहाँ आ गया। ये अगर मैं कहूँ ये पार्ट सारा कैपिलरीज का ब्लड ग्लोमेरुलस था, इनमें ब्लड था, यहाँ से ब्लड फिल्टर होके यहाँ आ गया। जैसे हम उस किसी भी चीज़ को फिल्टर आउट करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कि फ़िल्टर पेपर है, ऊपर से तुमने कोई गंदा पानी डाला, फ़िल्टर पेपर के नीचे तुमने बीकर रख दिया सो दैट वो छन जाए, अच्छे से फ़िल्टर आउट हो जाए, गंदगी ऊपर रह जाए। वैसे ही ब्लड को मान लो ये काइंड ऑफ एक सीव की तरह एक्ट कर रहा है कि यहाँ से जो भी है छन जाएगा ब्लड, उससे वेस्ट यहाँ आ जाएगी। ठीक है, दिस मार्क्स द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका दूसरा नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वाई इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? क्योंकि ये पार्ट कौन सा है, ग्लोमेरुलस, इससे फिल्टर होकर चीज़ यहाँ आ रही है। सो इट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन? इट इज़ रिमूवल ऑफ वेस्ट और फिल्टरिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम the blood in from the glomerulus and it comes into the Bowman's capsule। यहाँ पे आ गया कैप्सूल में। now the waste will move this way, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारे पार्ट्स तक जाएगी, है ना। धीरे धीरे यहाँ से मूव करके हमने कहाँ पहुँचाना है, कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ से यूरेटर और बाहर तक पहुँचाना है उसको। सो यहाँ वेस्ट आने के बाद वहाँ से तो ब्लड में जो भी था, वेदर इट वॉज नीडेड, नहीं चाहिए, जहाँ जो भी ब्लड में मटेरियल था, जैसे मान लो कि बॉडी में ग्लूकोज होता है, सॉरी ब्लड में ग्लूकोज होता है, ब्लड में आयंस होते हैं जो बॉडी को चाहिए थे, वो भी यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में ब्लड में जो भी मटेरियल है वेदर इट इज़ नीडेड और नॉट, चाहिए चाहे नहीं चाहिए, वो यहाँ पे सारे का सारा फिल्टर हो गया। अब बॉडी को या ब्लड में वो चीज़ें वापस से ऐड करनी है जो अभी फिल्टर आउट यहाँ पे हुए हैं। मतलब वापस से ऐड सारी नहीं करनी, मतलब जो भी ब्लड को चाहिए उसकी वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, या बॉडी को ऐसी कोई चीज़ें चाहिए जो वेस्ट में ऐड होगी बट वो ब्लड में वापस चाहिए, सो वो रिटर्न करना है ब्लड को वापस। दैट मार्क्स द सेकेंड स्टेप। ठीक है, इसमें होना क्या है कि यहाँ पे ना, मैं ये पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, ये ध्यान से देख लो। ठीक है, ऐसे वेब बना होता है पूरा किसका, ब्लड की ट्यूब का, वेसल का ऊपर ही इसके, मतलब नेफ्रॉन के ऊपर ही एंटेंगल्ड होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। सो हर एक ट्यूब, मतलब पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये हर एक की जो मेम्ब्रेन है, हर ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन मतलब ये वाला पार्ट, इनकी जैसी परमिएबिलिटी है, जैसी इनकी नेचर है, उसी हिसाब से ये ब्लड में जो भी चीज़ ब्लड को वापस चाहिए वो ऐड करती जाती है। मान लो कोई आयन, एक आयन है, पोटेशियम आयन मान लो, जरूरी नहीं है पोटेशियम ही होता है पीसीटी में, मान लो कोई भी आयन है, ये वापस से पीसीटी क्या करेगी, यहाँ से वेस्ट पहुँच गई यहाँ पे मान लो। सो वेस्ट से जो आयन और जो भी चीज़ के लिए ये ओके है, मतलब पीसीटी ओके है, वो वापस किसको रिटर्न कर देगी, टू द ब्लड। ठीक है, वैसे लूप ऑफ हेनले जनरली वाटर या सोडियम के लिए होता है। सो सोडियम और वाटर वो किसे रिटर्न कर देगा, टू द लूप ऑफ हेनले। एंड डीसीटी विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। ठीक है, मैक्सिमम पीसीटी में हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, पहले हमने फिल्टर कर दिया ब्लड को, सारी वेस्ट यहाँ पे इकट्ठी कर ली, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि चलो ब्लड फिल्टर हो गया सारा। बट उसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, या आफ्टर सम टाइम ब्लड को कुछ चाहिए, उस केस में एनी हाउ कैसे भी केस में ब्लड को चीज़ें वापस करनी है, रिटर्न करनी है। मान लो कि ग्लूकोज आ गए हैं, वेस्ट में एंटर हो गए, अमाइनो एसिड चला गया, पानी चला गया, वो चाहिए ब्लड को वापस। सो वी आर गिविंग और आर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, द रिटर्निंग ऑल द थिंग्स बैक टू द ब्लड
सो वो रिटर्न करना टू द ब्लड, उसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। अब ये रीएब्जॉर्प्शन क्यों कहा, क्योंकि पहले तो ब्लड ने फिल्टर कर दिया सब कुछ, अब रीएब्जॉर्ब कर रहा है ब्लड फ्रॉम द टिब्यूल्स, टिब्यूल्स से जो वेस्ट दे दी थी पहले उसमें से चीज़ों को रीएब्जॉर्ब मतलब दोबारा एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दैट कि उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है वट एवर इज़ रिक्वायर्ड वो वापस ले रहा है। दैट इज़ द सेकेंड स्टेप, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज़ सिक्रीशन। देर आर सम ड्रग्स लाइक क्रेटिनिन इज देयर। क्रेटिनिन ऐसा ड्रग है जो यहाँ पे फिल्टर आउट नहीं हो पाता हेयर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, मतलब वेस्ट में एंटर नहीं हो पाता व्हेन ब्लड रीचेज हेयर, और देर आर सर्टन पार्ट्स लाइक इन पीसीटी और डीसीटी, बेसिकली डीसीटी में जाकर कि क्या होता है कि जो चीज़ें वहाँ पर मतलब जो ड्रग्स वगैरह यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाए ड्यू टू दैट मेम्ब्रेन नेचर और पोर साइज, उसकी वजह से वो वहाँ पे वेस्ट में एंटर नहीं हुए, तो अगेन ब्लड से, यहाँ पे ब्लड की ट्यूब तो है ही, है ना, सो ब्लड से अगेन जो ड्रग्स हैं वहाँ फिल्टर नहीं हुई, वो वापस अगर मान लो और भी कोई वेस्ट बन जाती है ब्लड में टिल दैट टाइम जब तक यहाँ पर वेस्ट पहुँच रही है, सो डीसीटी तक पहुँचते पहुँचते ब्लड कैपिलरी से फिर से वेस्ट कहाँ पर एंटर हो रही है, इनटू द डीसीटी, ठीक है। पहले हमने पूरा फिल्टर कर दिया, उसमें से ज़रूरत का सामान वापस ले लिया, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में डीसीटी पर जाकर अगर कुछ ड्रग्स रह जाते हैं जो फिल्टर आउट नहीं हो पाए थे इन द वोमेंस कैप्सूल वाला एरिया में, तो वो यहाँ पे डीसीटी में आकर दोबारा से ऐड हो जाएंगे इनटू द डीसीटी फ्रॉम द ब्लड वेसल। सो यहाँ पर आके पूरी वेस्ट बन जाती हैं, इट विल गो टू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स, मतलब जैसे ये मान लो किडनी है, इसमें ऐसे करके पार्ट्स होते हैं, यहाँ से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स यूनाइट करेंगी, ठीक है, एक साथ वो ओपन होंगी इनटू, ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके ओपन होंगी इनटू द यूरेटर। ये यूरेटर है, यूरेटर से फिर कहाँ जाएंगे, नीचे यूरिनरी ब्लैडर एंड देन आउटसाइड टू द यूरेथ्रा। सो कलेक्टिंग डक्ट यूनाइट करके मतलब एक साथ मिलके क्या किस में ओपन होंगे, यूरेटर। यूरेटर किस में ओपन होएगा, यूरिनरी ब्लैडर, यूबीआई हैव रिटन फॉर यूरिनरी ब्लैडर। आउटसाइड कहाँ पे ओपन होएगा, इनटू द यूरेथ्रा। सो दिस इज हाउ इट इज़ फंक्शनिंग और इट इज़ वर्किंग, कि पहले सारा ब्लड फिल्टर आउट होगा, ब्लड से जो वेस्ट है फिल्टर आउट होगी फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलस है जो, उसके नेटवर्क से सारा ब्लड यहाँ फिल्टर आउट हुआ, पहला स्टेप बना। और जहाँ यहाँ पे जो मैंने ये ब्लू ब्लू वाला फिल्टर आउट हुई हुई वेस्ट बनाई है, इसे हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स जिसमें लिखा होगा कि इसमें क्या क्या सामान फिल्टर होके आता है, मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स फिल्टर होके आते हैं। सो जब ये यहाँ जाएगा इट विल पास थ्रू द ऑल एरियाज। सो जो भी चीज़ें ब्लड को चाहिए वो वापस रिटर्न करवानी है, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज अगेन देयर इज एडिंग अप ऑफ वेस्ट इनटू द डीसीटी पर जाकर जो वेस्ट ऐड हो रही है दोबारा से, इफ़ देयर इज एनी वेस्ट दैट इज स्टिल देयर इन ब्लड, तो वो यहाँ पे आके फिर से ब्लड में एंटर हो रहा है। इट विल एंटर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, यूनाइट होके यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, इट विल गो आउट टू द यूरेथ्रा। सो दिस इज हाउ यूरिन गेट्स फॉर्म्ड। एंड एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, जब यूरिन रिमूव हो जाता है बॉडी से, एलिमिनेशन ऑफ यूरिन इज नोन एज यूरिनेशन, ठीक है। So this is how it is working. Thank you.